Yes, ma'am. ओके, सी बेटा, ठीक है, ये हमने क्लासिफिकेशन देखा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का। एंड नाउ वी विल सी इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स द एक्टिविटी विच इज कंसर्न्ड विद गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग इनकम। Economic activity means when there is an exchange of goods and services with money, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। भले आप फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, अननोन हो, कस्टमर्स, प्रोड्यूसर, व्हेन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ मनी, दैट एक्टिविटी, दैट ट्रांजैक्शन बिकम्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। राइट बेटा? बेसिकली दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जैसा कि हमने आगे देखा, प्राइमरी सेक्टर, राइट, प्राइमरी सेक्टर, secondary sector and tertiary sector, right beta? Basically these three things are included in economic activity. These three sectors are included in economic activity. Okay, see beta, now we will see one by one the basic meanings of it. Okay, see, let's start. Primary sector, it includes activity जिसमें हम लोग natural resources की help लेते हैं, right? Most of the natural products are from agriculture, right? That's why this industry is also known as agriculture and related sector. Yes, Akansha, can you read out the importance of primary sector beta? Yes, ma'am. It Please. provides raw materials to secondary sector in the absence of which production cannot take place. Yes. Krishna, can you give me one example related to this? Yes, one example related to this primary sector. The raw material are present in nature and we can extract it by various processes. Yes, yes, Rishika, you want to say something? No, ma'am. You raised your hand, beta. When we are talking about secondary sector, that means it includes activity where transformation has been done. जहाँ पे, if I give you example, जहाँ पे शुगर कैन में से शुगर बन रही है, गुड़ बन रहा है, खांडसारी बन रही है, because these three things are directly used by we as a consumer. शुगर कैन में से कोई प्रोडक्ट बन रहा है जो कि कस्टमर्स, कंज्यूमर्स अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे, राइट? दैट्स व्हाई दिस इज सेकेंडरी सेक्टर। जो हम रॉ मटेरियल्स प्राइमरी सेक्टर में से यूज कर रहे हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करके हम यूज करेंगे उसको सेकेंडरी सेक्टर में, जहां पे वो एक ऐसा रेडी प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, राइट? जनरली ये सारी चीजें इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, इन सारी चीजों में होती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं, इसीलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है, राइट? That's why secondary sector is also known as industrial sector or manufacturing sector. Yeah, Krishna, that's okay, beta, fine. Right? Now we will see the importance. Rishika, can you just read out the importance, beta? Goods in its absence, the raw material will remain unutilized. Yes. Right, beta, इसका importance क्या है secondary का? That secondary sector जो है, it helps to convert raw materials into a finished product, and if सेकेंडरी सेक्टर इज नॉट देयर तो रॉ मटेरियल हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, एंड दस रॉ मटेरियल विल रिमेन अनयूटिलाइज्ड, राइट? एंड दस रॉ मटेरियल विल रिमेन अनयूटिलाइज्ड। इसीलिए सेकेंडरी सेक्टर का होना बहुत जरूरी है। फाइन, नाउ सी बेटा, एग्जाम्पल इज गिवन टू यू हियर।
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लाइक कार, क्लोथ, शुगर मेकिंग एंड एटसेट्रा, राइट, जहाँ पे हमको प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल मिलता है और हम लोग फिनिश गुड्स पे आते हैं. नेक्स्ट इज अवर टर्शियरी सेक्टर. It includes the services to other two sectors. That means जो भी दो sectors हैं हमारे, उनको जो services हम provide करते हैं वो चीज include होती है tertiary sector में. ये activities में कोई goods नहीं produce होते. There is no production of goods. They don't produce good, but they take care for the production process. Production हुआ है. If I'm making biscuits, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर से मैंने रिसोर्सेज लिए, सेकेंडरी सेक्टर को ध्यान में रख के मैंने बिस्किट्स बनाए, पर वो बिस्किट्स प्रोड्यूस करके मैं क्या करूंगी? आई हैव टू ब्रिंग दैट इनटू अ मार्केट. So for bringing them into a market, for bringing them to the customers, I have to use some services. That services include transportation, communication, banking, and basic professions जैसे कि teachers, doctors, right, policemen, they all are included in tertiary sector. जो हमको services provide करते हैं in one or the other way, that is known as tertiary sector. As it creates and generates services for others, it is also known as service sector. Yes, Twara, can you read this importance, beta? This sector is an important link between the other two sectors, which would not develop in the absence of these sectors. Yes, continue with example, beta. Transportation, banking, communication, teaching, etc. Yes, very good. Sector here is an important link, right? It is an important link between the other two sectors, जो कि इस हम आप sector के स्टार्ट कर रहे हो तो ऐसा हो रहा है, ग्रीन आ गया फिर से. So when we are talking about the importance of tertiary sector, then this sector is an important link, right? Tertiary sector जो है वो दोनों sectors के बीच में एक बहुत ही important link हो जाती है. देखो बेटा, अगर सेकेंडरी सेक्टर नहीं है तो प्राइमरी सेक्टर का कुछ काम नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर टर्शियरी सेक्टर नहीं है तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का काम नहीं हो पाएगा, राइट? बिकॉज अगर लोगों तक वो चीज नहीं जा रही है तो उस चीज को बनाने का क्या मतलब? इफ आई एम मेकिंग बिस्किट्स एंड आई एम नॉट giving that biscuits या I am not bringing that biscuits to the market for consumers use, तो वो मेरे बिस्किट बनाने का कोई फायदा होगा नहीं, right? That's why this sector is very important. Yes, see beta, next you can see here is example. एग्जाम्पल में आप देख सकते हो ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, टीचिंग. देयर आर वेरियस प्रोफेशंस इंक्लूडेड इन टर्शियरी सेक्टर हु प्रोवाइड्स सर्विसेज, राइट? डॉक्टर्स भी आ गए इसमें, पुलिसमैन, जज, एवरीवन हु प्रोवाइड सर्विसेज टू द मार्केट, सर्विसेज टू द population, to the consumers, they are known as, they are included in tertiary sector. Now we will see a very important topic, interdependence of the three sectors. हमने three sectors के बारे में देख लिया, right? ये भी हमने देख लिया कि अगर सेकेंडरी नहीं है तो प्राइमरी नहीं चलेगा, टर्शियरी नहीं है तो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों नहीं चलेगा. हाउ दिस आर रिलेटेड वो हम देखेंगे, ठीक है? सी नेक्स्ट स्लाइड विल हेल्प यू how these three industries, how these three sectors are related and dependent on each other. See beta, this is primary industry, right? कॉटन जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ये कॉटन जो है वो फैशन इंडस्ट्री के लिए यूज होता है. सी this is primary industry where cotton is grown and picked on a cotton farm, right? Easy. Next, ये कॉटन जब फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में जा रहा है और ये कॉटन प्रोसेस हो रहा है फॉर क्लोथ. यस, सी बेटा, टर्शियरी सेक्टर में आप देखोगे कि किस तरह से ये कॉटन जो बना कपड़े में, वो कपड़ा स्यू होके क्लोथिंग में कन्वर्ट होके और
टर्शियरी सेक्टर में गया, शॉप्स में गया फॉर कस्टमर्स, राइट। अब इन तीनों की रिलेटिविटी समझ आई बेटा। प्राइमरी में रॉ मटेरियल कन्वर्ट होके सेकेंडरी में जाता है जहाँ पे एक पीस ऑफ क्लोथ बना, और वो पीस ऑफ क्लोथ जो है वो टर्शियरी सेक्टर में जाता है जहाँ पे वो क्लोथ कस्टमर्स को यूज करने के लिए रेडी हो गया, राइट बेटा। इसको हम बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर। सी बेटा, स्नेहा, कैन यू रीड आउट दिस ब्लू बॉक्स? कैन यू रीड आउट दिस कैप्शन? In the process, many other services like banking, transportation, communication, storage, etc. are also needed. राइट बेटा, इन दिस प्रोसेस हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे हमको मनी का ट्रांजैक्शन करना है तो बैंकिंग चाहिए कंपलसरीली, हमको गुड्स हैं या कुछ भी वन प्लेस टू अनदर मूव करना है, सो वी नीड ट्रांसपोर्टेशन, राइट। वी मस्ट हैव कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से हम डीलर्स प्रोड्यूसर्स के साथ बात कर सकेंगे, राइट। एंड दिस वे गोडाउन्स एंड स्टोरेज, ये भी बहुत जरूरी होते हैं कि हम लोग गुड्स वहां पे स्टोर कर सकें। फाइन, please check your videos. See, how do we count various goods and services, and how do we know the total production of each sector? So for this concept, we must know the concept of final good and intermediate good. When we are talking about final good, then it refers to the finished good, जो कि मार्केट में हमको रेडी मिलता है, जो आप लिवरपूल, पेंटालून्स, इन सब जगह पे जो आप शॉपिंग कर रहे हो, जो आपको चीजें मिल रही हैं रेडी टू यूज, दे आर फाइनल गुड्स। 2020 बिस्किट्स आप लोग जो खा रहे हो वो फाइनल गुड्स है, राइट। एंड उसके लिए, जैसे बिस्किट बनाने के लिए आपको शुगर चाहिए, व्हीट चाहिए, राइट, वॉट एवर एल्स थिंग्स आर नीडेड फॉर मेकिंग बिस्किट्स, तो वो चीजें जो लगी बिस्किट बनाने के लिए, उसको कहा जाता है इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर? सी बेटा, nuts plus milk plus wheat plus sugar oil plus essence will give you biscuit. ये बिस्किट जो है वो फाइनल गुड है, लेकिन ये सारी चीजें जो यूज हुई वो सब इंटरमीडिएट गुड्स है, राइट। Yes, So let's move further. As you can see that different goods जो हैं अलग अलग sectors में produce होते हैं, and we use different kinds of units for them. राइट, अलग अलग यूनिट्स भी हम लोग यूज करते हैं, और इसीलिए इनको अब अगर मैं आपको बोलूं केजीज को, लीटर्स को, मीटर्स को, सेंटीमीटर्स को, इन सबको साथ में प्लस करो तो पॉसिबल है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। देयरफॉर व्हेन वी आर कंसीडरिंग द मॉनेटरी वैल्यूज, जो हम मॉनेटरी वैल्यूज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, व्हेन दिस गुड्स एंड सर्विसेज आर एडेड अप विथ एक्चुअल नंबर्स, राइट। देखो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ व्हीट को हमने दिया है 50,000 पर केजी, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, राइट। 50,000 केजी क्वांटिटी क्या है व्हीट की? 50,000 केजी। प्राइस पर केजी क्या है? 8, राइट। प्राइस पर केजी है 8, तो 50,000 केजी का क्या प्राइस हो जाएगा? दैट वी कैन कैलकुलेट। क्वांटिटी कितनी है, राइट, और प्राइस पर केजी अगर हमको मिल जाएगा तो हम लोग उस चीज को कैलकुलेट करके वी कैन फाइंड द मॉनेटरी वैल्यू। फाइन, सी बेटा, नाउ दिस आर सम थिंग्स वेयर वी मस्ट हैव सम केयर्स टू शुड बी टेकन। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको ध्यान रखनी चाहिए जब फाइनल गुड्स हैं या इंटरमीडिएट गुड्स हैं उस टाइम पे, राइट। सी बेटा, और स्पेसिफिकली जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं मनी, when we are calculating the total production of a sector, right, तो फाइनल गुड्स का जो वैल्यू है that is included and not in the intermediate goods, right। जो फाइनल गुड्स का मनी वैल्यू है वो इंक्लूड होता है, जो बिस्किट का वैल्यू है वो इंक्लूड होगा। दूध का प्राइस बढ़ा या घटा, मिल्क प्राइस चेंजेस, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग द फाइनल अमाउंट। आई बात समझ बेटा? तो फाइनल गुड्स का जो अमाउंट होता है that is only used for calculating the total production of a sector. There is no calculation included of intermediate goods.
right? And this value of final goods are already including the values of intermediate goods, right? मैम ये लास्ट वापस बोलो. ओके देखो इसमें क्या होता है, हमारे दो गुड्स हमने देखे पिछली स्लाइड में, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, राइट? सो व्हेन दिस इंटरमीडिएट गुड्स को हम मिक्स करते हैं तब जाके हमको मिलता है फाइनल गुड्स का प्राइस. जब मुझे बिस्किट बनाना है तो मिल्क, शुगर, व्हीट, एसेंस, एवरीथिंग व्हाट आई एम यूजिंग टू मेक अ बिस्किट, उस सारी चीजों का प्राइस इंक्लूड करके मैं मेरे फाइनल प्रोडक्ट बिस्किट में एक प्राइस ऐड ऑन करूंगी. ठीक है, तो हमारे पास जो प्राइस आया बिस्किट का उसमें ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स की प्राइस इंक्लूडेड है, राइट? उसमें ऑलरेडी इंटरमीडिएट प्राइस इंक्लूडेड है इंटरमीडिएट गुड्स की. तो जब हम लोग फाइनल गुड्स के लिए, मतलब जब हम लोग टोटल प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी सेक्टर का, तो हम लोग सिर्फ फाइनल गुड्स का वैल्यू ही कंसीडर करते हैं. हम उसमें इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू कंसीडर नहीं करते हैं, राइट? देखो अगर हम कंसीडर करेंगे इंटरमीडिएट गुड्स का तो हम वो डबल काउंटिंग हो जाएगा, क्योंकि जब हमने फाइनल गुड का प्राइस डिसाइड किया तब ऑलरेडी हम लोग ने इंटरमीडिएट गुड्स का प्राइस डिसाइड किया था, राइट? उसके बेसिस पे ही हमने फाइनल गुड का प्राइस डिसाइड किया था. तो जब हम लोग टोटल प्रोडक्शन काउंट कर रहे हैं उसमें अगर हम फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स दोनों का इंक्लूड करेंगे फिर से तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगा. नाउ क्लियर बेटा? यस, सी हियर एग्जांपल इज गिवन टू यू. यहाँ पे फार्मर है जो कि 8 रुपीज पर केजी पे व्हीट सेल कर रहा है, यहाँ पे वो हो जाती है 10, तो यहाँ पे ये 8 ऑलरेडी इंक्लूड हुआ तब ये 10 हुआ, समझे? और यहाँ पे बिस्किट जो हमको मिलता है वो होता है 15, तो इसमें ऑलरेडी 8 और 10 दोनों इंक्लूडेड है, प्लस 5 हुआ, इसीलिए कंज्यूमर के पास सिर्फ 15 जाएगा, 15 प्लस 10 प्लस 8 नहीं जाएगा. अब आई समझ? When we talk about gross domestic product, that is GDP. GDP में हमारी नेशनल बाउंड्रीज में, मतलब हमारी कंट्री की बाउंड्रीज में जो भी इन 3 सेक्टर्स का प्रोडक्शन का टोटल होता है उसको सम अप किया जाता है, राइट? और जो हमको एक अमाउंट मिलती है उसको कहा जाता है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ग्रॉस मतलब टोटल करना, डोमेस्टिक मतलब विद इन बाउंड्रीज. That's why it is known as gross domestic product, GDP. Yes, when this value of goods and services are produced, then एक particular year में, for example 20 to 21, 2020-21 में ये 3 सेक्टर्स में टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है उनको जब हम ऐड करेंगे और हमको जो एक टोटल प्रोडक्शन या सॉरी टोटल वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा हमारा GDP. समझ में आई बेटा? GDP एक ऐसा वैल्यू है जिसमें फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो भी एक पर्टिकुलर साल में किए गए हैं उसका टोटल होता है. फिर इसमें टीचिंग एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड बिकॉज दैट आर आल्सो सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड in tertiary sectors, right? Yes, Twana? Yes, Rishika, you raised your hand, beta? Yes, ma'am.